students, in last lecture we had seen the scarcity theory of economics, and last to last lecture we had seen the two definition which was given by Alfred Marshall, right? That is of classical theory and neoclassical theory, right? So Adam Smith, sorry, right? So these two theories we had already seen that, and now there is another theory. In last lecture we had already understand the some part of this theory, that is of scarcity theory, right, which is given by Leonard Robbins, right. So we had understood some of the part, some of the explanation of this theory, right. Now we will understand in depth, right. We had already seen that unlimited ends means unlimited wants, that human beings has unlimited wants, right. It will not end, right. मैंने आपको ये भी कहा था कि अगर वो wants खत्म हो गई है तो इसका मतलब है we are dead, right. because हमें हर दिन हर टाइम कुछ ना कुछ चाहिए होता है, हमारी wants होती है, right. तो बेसिकली ये जो नीड्स एंड वांट्स है वो अनलिमिटेड है। अच्छा, सेकंड थिंग मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नीड, वांट एंड डिमांड, राइट। Later on in this part we will definitely see in depth what is the difference between all these things, right. In short, if I can say that need means the basic need of human life, right. For example, food, water, these are the basic needs of human life, right. Without that we cannot sustain, right. Say for example air, water, food, right. These things are the basic needs, right. Without that we cannot survive, right. Second thing is want, that I want this, I want that, right. More than the needs, right. More than the needs. Say for example a big shelter, big house, right. Then demand, as we become the rich, or we demand something. Say for example I want iPhone Pro, right. So this is the demand. I want a mobile phone, I need a mobile phone, that is my want, right. कि मुझे मोबाइल फोन चाहिए, पर मोबाइल फोन में भी मुझे अपग्रेडेड वर्जन या अच्छा दिखाने का जैसा स्टेटस मुझे शो करना है किसी को, right. iPhone Pro, that is my demand, right. So here we will take end as all wants and demands, right. उसमें end मतलब हमें कुछ ना कुछ चाहिए होता है, right. Whether it is a need, whether it is a demand, or whether it is a wants, right. Okay, so our resources, our demands are unlimited, it will never end, right. Second thing is scarce means, जो हमारी theory है scarcity, that is a scarce means limited, right. हमारी demand unlimited है, पर उसके जो resources है वो limited resources है, right. So sources, say for example money, right. मेरी डिमांड है मुझे iPhone 12 i Pro लेना है, right. But money, I don't have money, right. So money is always scarce, means resource is always scarce, right. This example is I have taken on myself, right. Second example, if I were to say that इंडियन गवर्नमेंट को और ज्यादा रफाल्स लेने हैं, राइट. बट बजट इज द मेन थिंग, उसके पीछे जो बजट अप्रूव होना चाहिए सबसे पहले वो चीज आती है, राइट. तो वहां पे भी क्या है, लिमिटेड स्केल्स, राइट. दैट इज रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत ही लिमिटेड है। ओके, ये हमने मनी का सोर्स देखा। सेकंड, if I want to do production of something, right, then land जो है वो scarce है, right, limited है, right. मुझे कुछ वहां पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बनानी है, राइट, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बनानी है, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए जो लैंड चाहिए वो स्केयर है, राइट, वो बहुत ही लिमिटेड है। सेम वे वाटर, राइट. So these things, resources are totally limited, whether it is a natural resource or not. वो natural resource भी हो सकते हैं या कोई other resource भी हो सकते हैं, but resources are scarce, वो limited हैं,
right? That we had seen that alternative use of means. अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ मींस मतलब कि जो हमने देखा था कि जो रिसोर्सेज है उसका हम अल्टरनेटिव मतलब कोई दूसरे तरीके से भी यूज कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे यूजेस हैं जिसको बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जिसका हम दूसरे तरीके से भी यूज कर सकते हैं। एक से ज्यादा तरीके से के उसका हम यूज कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था मिल्क, राइट? मिल्क इज देयर, right? I need a milk, that is my unlimited aim, that is my desire, that I want milk, right? But it's scarce. बहुत सारे ऐसे प्रोडक्शंस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मिल्क जो है इट्स स्carce। जितना डेली का प्रोडक्शन होता है वो तो उतना ही रहेगा, उसमें ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। थोड़ा कम होगा, थोड़ा ज्यादा होगा, पर उतना ही होगा, वो अनलिमिटेड नहीं है, राइट? But we can use it alternatively. Say for example, milk जो है उसको हम बटर, उसमें से हम बटर मिल्क भी बना सकते हैं, कर्ड भी बना सकते हैं, पनीर भी बना सकते हैं, right? So these are the alternative uses of milks, right? और सिंगल यूज जिस प्रोडक्ट का होता है वो तो वही रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब इनिशियली ये चेंजेस होते रहते हैं, चेंजेस बहुत सारी प्रोडक्ट्स में होते रहते हैं। से फॉर एग्जांपल कैमरा, जब शुरुआत से कैमरा आया ना तब हम अलग से कैमरा लेते थे, राइट? टू कैप्चर आवर मोमेंट्स, राइट? टू कैप्चर द पिक्चर्स, राइट? ओके, बट लेटर ऑन अपग्रेडेड वर्जन फिर मोबाइल में ही कैमरा आ गया, राइट? मोबाइल में ही वीडियो शूटिंग आ गया, राइट? तो ये सारी चीजें जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होती है वैसे वैसे तो वो चीजें बदलती रहती हैं, राइट? चीजों का अल्टरनेटिव यूजेस होना शुरू हो जाता है, या तो सिंगल यूज भी हो सकता है। जब सिंगल यूज था कैमरा का तब हम सिर्फ उसमें से कैमरा पिक्चर या वीडियो ही ले सकते थे, पहले तो पिक्चर्स ही थे, राइट? सिर्फ इमेजेस हम कैप्चर कर सकते थे। देन लेटर ऑन उसका मल्टीपर्पज यूज थोड़ा सा बढ़ा, क्या उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग भी आने लगा, राइट? फिर वो दोनों चीज हम अपने फोन में भी यूज कर सकते थे, राइट? तो ये सब चीजें हैं जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपग्रेड होती रहती है, राइट? सो इकोनॉमिक्स ये हमने एक थियरी का थोड़ा सा पार्ट ये पिछले लेक्चर में समझा था। अब हम आ जाते हैं उसकी सुपीरियरिटी में। सुपीरियरिटी मींस उसका एडवांटेज, मतलब ये थियरी का मेन जो पार्ट है, मेन फोकस है, वो यहाँ पे बता रहे हैं। सबसे पहला है प्योर साइंस, राइट? ये हम आगे देखेंगे कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस और आर्ट उसके नेचर में, राइट? बट हियर वी कैन अंडरस्टैंड दैट साइंस इट्स अ प्योर साइंस, मतलब कि ये जो चीज है वो प्रैक्टिकल, बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज है, बिल्कुल एक हम कह सकते हैं इसमें कोई अननेसेसरी बातें नहीं की गई है। जैसे हमने पहली दो थियरीज में देखा था वेल्थ और वेलफेयर के बारे में, राइट? उसके बेसिस पे यहाँ पे नहीं दिया गया है, यहाँ पे प्योर साइंस दिया गया है कि भाई ह्यूमन बीइंग्स है हम, राइट? उसकी डिमांड्स जो है वो अनलिमिटेड है, हाँ है, जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है और अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज का हम अल्टरनेटिवली यूज भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें इट्स टोटली फैक्ट थिंग्स, राइट? उसमें हम कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं, राइट? तो इसीलिए उसको यहाँ पे कहा गया है दैट इट्स अ प्योर साइंस। इसमें कहीं पे भी कोई चीजों का ओवर एक्सप्लेनेशन या अंडर एक्सप्लेनेशन या वो जो चीज इसमें बताई है उसमें से कुछ भी मिसिंग नहीं है, राइट? दैट इज व्हाई इट्स अ प्योर साइंस। Okay, second thing, it is universal. This theory is universal. Universal माने सब जगह हम उसको अप्लाई कर सकते हैं, राइट? ऑब्वियस है, ये 3 पॉइंट से ही हमें पता चल सकता है कि आज यहाँ पे इंडियन मैन हो या अमेरिकन मैन हो या यूरोपियन हो, कोई भी हो, चाइनीज हो या जापानीज हो, कोई भी हो, बट इट्स यूनिवर्सल। कहीं पे भी ये लोग लागू हम कर सकते हैं, कहीं पे भी ये डेफिनेशन एप्लीकेबल हो सकता है, राइट? सो इट्स यूनिवर्सल। ये पूरा जो चीज है वो एक सभी
ह्यूमन काइंड के लिए बनाई गई है, राइट। ओके, दैट इट्स अ परफेक्ट पिक्चर, राइट। मतलब जो भी दिया है एकदम परफेक्टली दिया है, इसमें कोई कहीं पे भी, जैसे मैंने पहले भी कहा, कोई अंडर एक्सप्लेनेशन या ओवर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। जो दिया है सोच समझ के परफेक्टली दिया गया है, राइट। Okay, students, we had seen the theory as well as the superiority of these theories, right? But there are also some criticism on this theory also, right? ये theory को भी थोड़ा बहुत criticism मिला है। क्या-क्या है, क्या-क्या aspect ये लियोनल रॉबिन्स से भी छूट गए हैं, राइट। लियोनल रॉबिन्स ने कौन-कौन से aspect बिल्कुल ध्यान में नहीं लिए हैं, राइट। क्रिटिसिज्म उसकी भी कुछ टिकाया हुई है। क्या क्या क्रिटिसिज्म है ये हम देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इग्नोरेंस और नॉर्मेटिव और एथिकल एस्पेक्ट। फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो दैट इन प्रीवियस both of the theories we had seen that इकोनॉमिक्स जो है वो सोसाइटी के रिलेटेड भी है, राइट। मतलब जो भी हम ह्यूमन काइंड है वो सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी के बीच में रहते हैं, तो वो एस्पेक्ट भी ध्यान में लेना पड़ता है। बट हियर लियोनल रॉबिन हैज नॉट कंसीडर्ड सोसाइटी, राइट। उसने सोसाइटी को तो बिल्कुल ध्यान में ही नहीं लिया है। कैसे ध्यान में नहीं लिया है आप सब जानते हो। ये 3 पॉइंट पे उसकी पूरी थियरी है। अब ये 3 पॉइंट पे ह्यूमन काइंड यहाँ पे सोसाइटी का कहीं पे भी डिस्क्राइब नहीं किया गया है। से फॉर एग्जांपल कोई भी सोसाइटी हो, कोई भी ग्रुप हो, राइट, के से फॉर एग्जांपल वो अपने अपने वजूद से वो पूरी सोसाइटी का इकोनॉमिक बैलेंस बनाया रखता है। अगर वो सोसाइटी ना हो तो इकोनॉमिक बैलेंस जो है वो बिगड़ जाएगा। से फॉर एग्जांपल फार्मर्स, राइट। एज यू ऑल नो दैट आवर इंडियन इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन farmers, right? If farmers are not there, then Indian economy cannot be survived. Indian economy जो है वो survive नहीं कर पाएगी, वो टिक नहीं पाएगी अगर farmers यहाँ पे ना हो तो, right? तो basically ये जो social groups हैं उसको पूरी तरीके से डिस्क्राइब नहीं किया गया है, या पूरी तरीके से या तो फिर कहीं पे भी उसका डिस्क्रिमिनेशन नहीं दिया गया है, राइट। पूरा सोशल अवॉइडेंस किया गया है, सोसाइटी को तो पूरा अवॉइड किया गया है, राइट। सो इग्नोर नॉर्मेटिव और एथिकल एस्पेक्ट्स, सोसाइटी का उसमें कहीं पे भी उल्लेख नहीं किया गया है, राइट। सेकंड वन इज रिड्यूस इकोनॉमिक्स ओनली टू वैल्यूएशन थियरी, राइट। इकोनॉमिक्स जो है वो वैल्यूएशन मतलब वैल्यू निकालने से अलावा भी बहुत सारी कुछ चीजें हैं, राइट। यहाँ पे उसने क्या किया है कि भाई ये जो अनलिमिटेड डिमांड्स हैं उसका एक बना दिया है, एक जो है उस लिमिटेड स्कैर्स बना दिया है, लिमिटेड रिसोर्सेज बना दिया है। बट ये वैल्यूएशन के अलावा भी इकोनॉमिक्स में बहुत कुछ है जो इसने ध्यान में नहीं लिया है। क्या-क्या इकोनॉमिक्स में ऐसी चीजें हैं देखते हैं हम अभी इसी आगे के पॉइंट पे। अवॉइडेंस ऑफ केनेसियन इकोनॉमिक्स। अब ये केनेसियन इकोनॉमिक्स क्या है वो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखेंगे, क्योंकि ये थियरी जो है बहुत बड़ा पार्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, राइट। दिस थियरी इज बेस्ड ऑन डिमांड आल्सो। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम ये भी देखेंगे कि डिमांड क्या है और वो कैसे वर्क करता है। डिमांड के अलग-अलग फैक्टर्स भी हैं। तो ये पूरा जो चैप्टर है ये हम नेक्स्ट चैप्टर में समझने ही वाले हैं, राइट। सो तब आपको ये पॉइंट, ये थियरी क्या है वो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट थियरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसको भी इसने कंसीडर नहीं किया है। फॉर एग्जांपल नेशनल इनकम, पूरे नेशन की इनकम जो है, ऐसे बहुत सारे बड़े पॉइंट्स हैं जो रॉबिन्स ने कंसीडर नहीं किए हैं। जैसे कि मैंने पहले पॉइंट पे भी कहा था, वी इग्नोर टोटली एथिकल एस्पेक्ट, सोसाइटी के बीच में रहना है और वो चीजें कंसीडर नहीं करनी है। से फॉर एग्जांपल इसने अनलिमिटेड एंड्स की बात कर दी, अनलिमिटेड वांट्स की बात कर दी, बट वांट्स, डिमांड्स, नीड्स आर डिफरेंट एज पर द पर्सन्स, राइट। आज मुझे कुछ और चीज चाहिए, आपको कुछ और चीज चाहिए।
तीसरे को कोई और चीज चाहिए। दिस थिंग्स आर बेस्ड ऑन डिमांड एंड माय इनकम, राइट, कि जो मैं कमाता हूं उसके ऊपर भी ये बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। पर ये जो चीजें हैं ये रॉबिन्स ने ध्यान में नहीं लिया है। उसने सिर्फ कह दिया है कि डिमांड हमारी अनलिमिटेड है और रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है। अब ये दोनों चीजों में इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन नहीं दिया जा सकता है, राइट। फिर है थियरी ऑफ प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब जैसे कि मैंने कहा कि ऐसे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, इसने सिर्फ एक ही प्रॉब्लम दिखाया है, दैट इज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, राइट। बट उसके अलावा भी इकोनॉमिक्स में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं लाइक अनएम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है, किसी के पास पैसा ही नहीं है, तो उसकी डिमांड क्या हो सकती है, राइट। तो दिस थिंग्स शुड बी कंसीडर्ड इन दिस थियरी, राइट। बट दिस थियरी इज बेस्ड ऑन टोटली साइंस। ये हमने देख लिया कि ये टोटल फैक्ट है, जो चीज है वो पूरी सच है, साइंस उसमें डिस्क्राइब किया गया है, राइट। बट उसमें बहुत सारी कमियां भी रह गई हैं। सिर्फ साइंस दिया गया है, बट एथिकल एस्पेक्ट्स हैं वो सब रख दिया है। फिर ये इकोनॉमिक्स को भी इग्नोर कर दिया है, राइट। थियरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ उसको भी कहीं पे दिखाया नहीं है। देन लैक ऑफ ह्यूमन टच, जैसा मैंने पहले पॉइंट में कहा कि सोसाइटी को इग्नोर किया है, अब सोसाइटी को ही इग्नोर कर दिया है तो ह्यूमन की बात ही नहीं आ सकती है। ह्यूमन ऑलरेडी इग्नोर हो चुके हैं सोसाइटी में ही, राइट। तो ये जो थियरी है उसमें ह्यूमन को पूरी तरीके से इग्नोर किया है, ह्यूमन की डिमांड्स को दिखाई है, राइट, उसके डिमांड्स को दिखाई है। बट उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हमने पहली दो थियरी में देखा, वेल्थ एंड वेलफेयर, राइट। वेलफेयर इज फॉर द मैन्स वेल्थ, राइट। तो ये वेल्थ इज फॉर वेलफेयर ऑफ मैन, राइट। तो ये दोनों चीजें हैं वो तो पूरी तरीके से इग्नोर ही हुई हैं, राइट। उसके अलावा है मोर एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉम्प्लेक्स। अब ये जो पॉइंट है ये थोड़ा सा अलग पॉइंट है, क्रिटिसिज्म में आपकी बुक पे और यहाँ पे दिखाया है, इसलिए हम कह सकते हैं। बाकी ये पूरा थियरी इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है मेरे हिसाब से कि किसी को समझ में ना आए, राइट, क्योंकि बेसिकली 3 पॉइंट पे ही इसकी पूरी थियरी बेस्ड है, राइट। पर ये 3 पॉइंट अगर आपको समझ में आ गए तो इट मींस कि ये पूरा जो आपका स्ट्रक्चर है तैयार हो जाएगा, राइट। तो जब भी इकोनॉमिस्ट कोई भी थियरी बनाते हैं, राइट, तो उसके क्रिटिसिज्म लगभग कोई और आ ही जाता है, राइट, कि क्रिटिसिज्म उसका क्रिटिसाइज करे, राइट। ये बेसिक थिंग है, उसकी सुपीरियरिटी हमने देखी, उसका क्रिटिसिज्म भी हमने देखा। आप कोई भी क्वेश्चन ले लोगे इकोनॉमिक्स में या तो फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट में, ये दोनों चीजें तो आएगी, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, हर चीज का प्रोस एंड कॉन्स तो होगा ही होगा, राइट। जैसे हमारे में भी है, राइट, कि हम किसी चीज में एक्सपर्ट भी हैं, किसी में नहीं भी हैं, राइट। तो सेम थिंग कोई ना कोई एस्पेक्ट किसी ना किसी से तो छूट ही जाता है, राइट। तो ये बेसिकली आज तक हमने अभी 3 लेक्चर्स में 3 अलग-अलग डेफिनेशंस देखी, उस डेफिनेशंस के अलग-अलग पॉइंट्स देखे, एक्सप्लेनेशन देखा, उसके एडवांटेजेस देखे, उसके डिसएडवांटेजेस देखे, राइट। तो ये जो 3 डेफिनेशन है ये बेसिक 3 डेफिनेशन है, जनरली हर कोई माइक्रो इकोनॉमिक की बुक पे आपको ये मिल जाएगी, राइट। इस डेफिनेशन को और डीपली समझना है और अगर अंदर उतरना है तो उसके लिए भी रेफरेंस बुक्स हैं, अलग-अलग रेफरेंस बुक्स, राइट। तो वो रेफरेंस बुक्स भी आप लोग एक बार देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमने अभी तक 3 थियरीज देखी हैं, 3 डेफिनेशंस देखी हैं। एक फर्स्ट थियरी थी क्लासिकल थियरी, सेकंड वन इज नियो क्लासिकल एंड थर्ड वन इज कैशियरी, right. Classical theory was given by Adam Smith, the father of economics. Second theory or neoclassical theory is given by Dr. Alfred Marshall, and third one is that is scarcity theory, which is given by Lionel Robbins, right. First theory, classical theory, was depends on wealth, that is why it is also been called theory of wealth.
Second one, neoclassical theory, it depends on welfare, right? Though they had given also priority to wealth, but it is second one, right? So this theory is also called theory of welfare, right? And third one, the scarcity theory, it has main 3 points, that is unlimited wants, limited resources and alternative uses of resources, right? So अभी तक हमने ये पूरी 3 थियरीज देखी हैं, 3 डेफिनेशंस देखी हैं, राइट? सो फ्रेंड्स, अगर आपको लगता हो कि हमारी स्पीड थोड़ी ज्यादा है या इफ देयर इज एनी लैंग्वेज इश्यू, लैंग्वेज में कोई किसी को प्रॉब्लम आ रही हो या और थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए, राइट, या और थोड़ा कुछ समझ में ना आ रहा हो, राइट, तो ये चीजें हम डिस्कस कर सकते हैं, राइट? आप कभी भी मुझे पूछ सकते हैं या बता भी सकते हैं, राइट? मैं आशा रखता हूं कि हम बहुत जल्द मिले, राइट? बट इन दिस ग्लोबल पैंडेमिक इट्स नॉट पॉसिबल मे बी, राइट? बट वी विल मीट वर्चुअली वेरी सून, राइट? हम एक मीटिंग कंडक्ट करेंगे, उस मीटिंग में सबसे पहले तो मैं आप लोगों को जानने के लिए, मिलने के लिए बहुत ईगर हूं, right? I'm very enthusiasm to meet you all, but very soon we will meet, right? तो बहुत जल्द मैं एक मीटिंग कंडक्ट करूंगा आप सबके साथ, वो मीटिंग में हम बहुत कुछ डिस्कस करेंगे, मैं बहुत कुछ आपको बताऊंगा कि हमें कैसे प्रिपरेशन करनी है इकोनॉमिक्स की, right? Because economic is a subject, right? It's not hard, but it's very deep, right? उसको समझना है तो बहुत उसको उसके अंदर घुसना पड़ेगा, बहुत डीपली समझना पड़ेगा, राइट? तब जाके आपको सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो समझ पाएंगे, और सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं। एक चैप्टर का यूज जो है वो दूसरे चैप्टर के साथ कनेक्टेड है, राइट? दूसरा चैप्टर सभी चैप्टर्स के साथ कनेक्टेड है, मतलब ऐसे सारे चैप्टर्स एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो समझना है हमें, उसको एक भी कंसेप्ट हमें छोड़ना नहीं है। प्लीज स्टूडेंट रिमेंबर, आज आप कोई भी चीज एग्जाम के लिए उसको ऑप्शन में रख सकते हैं, लेकिन इन फ्यूचर वही चीज आपको परेशान करेगी, राइट? जब भी आप आगे बढ़ोगे तभी आपको वो परेशान करेगी। इन योर मास्टर्स डिग्री आल्सो दिस डेफिनेशन, दिस कंसेप्ट विल डेफिनेटली कम अगेन, राइट? तो आप अभी से सारी चीजें क्लियर कर लो, अभी से सारी चीजें समझ लोगे, और जितना ज्यादा आप लोग एक्स्ट्रा रीडिंग में आप लोग बिताओगे उतना ही ज्यादा आपको फायदा होगा, राइट? वेरी सून वी विल मीट, और मेरे प्लानिंग्स आपके साथ चलने के लिए बहुत सारा मैंने कुछ प्लान किया हुआ है। आपके कोऑर्डिनेशन के बगैर वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, राइट? Sometimes you also will feel that why I am speaking in Hindi and English, right? But these things is very necessary, right? आपकी कम्युनिकेशन ही आपकी पहचान बन सकती है, राइट? जैसे मैंने पहले ही लेक्चर में कहा था, मेरा फर्स्ट लेक्चर था, राइट? उसी में जब इंट्रोडक्शन देते वक्त सारे कोर्स का मैं इंट्रोडक्शन दे रहा था, तभी भी मैंने कहा था योर कम्युनिकेशन विल बिकम योर आइडेंटिटी, राइट? तो ये सब चीजें आपको बहुत ध्यान में रखनी है। जो आपका बोलना है वही आपकी पहचान बन सकता है, पर कैसे बोलना है, कैसे बिहेव करना है, ये सारी चीजें साथ में हमें सीखनी है। No doubt you all are reading communication subjects also, you all are learning that, right? But some things cannot be taught by books, right? Books के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें सब्जेक्ट्स में, ये सब्जेक्ट में भी समझनी है और ये सब्जेक्ट के अलावा भी समझेंगे, right? But these things need your 110% dedication as well as coordination, right? उसके बगैर ये चीज पॉसिबल नहीं है। जैसे कि मैंने पहले लेक्चर में ही कहा था कि बहुत सारा कुछ है मेरे पास आपको देने के लिए, बट फिर आपके ऊपर भी थोड़ा बहुत डिपेंडेंट रहेगा कि उसको कैसे मेरे पास से ले सकते हैं, राइट? मैं बहुत कुछ देना भी चाहता हूँ आपको, राइट? बट उसके लिए
एक कम्युनिकेशन पहले तो होना बहुत जरूरी है। तो हम ये कम्युनिकेशन के लिए बहुत जल्द ही मिलेंगे, राइट। आई विल कंडक्ट अ वर्चुअल क्लास, राइट, जिसमें हमारा सबसे पहला इंट्रोडक्शन होगा, राइट। सो स्टूडेंट, be prepared for your first introduction session, right, and it must be in English only, right? Okay, so students, after seeing all these three definitions, there is a small concept in first chapter, that is economic activities and non-economic activities. It is a very easy concept and it's very easy to understand also, right? Which activities can we see इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक? किस एक्टिविटीज को हम इकोनॉमिक कह सकते हैं, किस एक्टिविटी को हम नॉन इकोनॉमिक कह सकते हैं, राइट। सो इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दैट एक्टिविटीज व्हिच आर रिलेटेड टू मनी, राइट, और व्हिच आर रिलेटेड टू इंटेंट, activities which are done with intention of some to get profit or money, right? These activities are being called economic activities, and activities which are not being done by intention of earning money, right, these activities are being called non economic activities, right। जो बुक में कुछ explanation दिया गया है, इस kind of definition, वो भी हम देख लेते हैं यहाँ पे। that economic activities means such activities which are performed to get some reward either in cash or any other benefit। जो एक्टिविटीज कुछ बेनिफिट के लिए की गई हो, whether it is a non monetary benefit or monetary benefit। कैसे? say for example, if I am selling one thing with intention of getting profit, right, in cash or without cash। without cash कैसे हो सकता है कि भाई मैं कुछ चीज लेता हूं और उसके बदले में मैं उसको कुछ दूसरी चीज दे देता हूं, भाई तू ये ले ले साथ में, राइट। तो these are the non monetary benefits, राइट। कोई मुझे बैंक में ट्रांसफर करवाता है पैसा, राइट, कोई भी मोड ऑफ पेमेंट हो या कुछ भी बेनिफिट के इंटेंशन के साथ किया गया हो, right, that is a economic activity, right। So second one is non economic activity। it means such activities which have no purpose to earn or to get benefit। इसका मतलब ये है कि कोई बेनिफिट या पर्पस ऐसा नहीं है अर्न करने का, राइट। कि फॉर एग्जांपल, इससे पहले भी मैंने एक एग्जांपल दिया था, इफ आई एम गिविंग गुड और सर्विस, गुड्स और सर्विस, राइट, इसमें दोनों चीजें आ जाती हैं, ये भी एक ध्यान रखना, गुड्स और सर्विस, राइट। डॉक्टर सर्विस, दे आर चार्जिंग फीस, लॉयर सर्विस, दे आर चार्जिंग फीस, राइट। तो दे आर प्रोफेशनल्स एंड सो दैट दे आर चार्जिंग फीस, राइट। ये एक चीज है कि जो भी प्रोफेशन है उसमें फीस चार्ज होती है, जो भी एम्प्लॉयमेंट है, जॉब है, उसमें सैलरी या तो वेज आता है, राइट, और बिजनेस में प्रॉफिट आता है। तो ये चीज आप एक नोट कर लेना, बिजनेस में प्रॉफिट आता है, कोई भी प्रोफेशन हो उसमें फीस आती है। प्रोफेशन मींस उसके लिए कुछ प्रोफेशनल के लिए उसके लिए कुछ इंटर्नशिप करनी पड़ती है, राइट, उसका क्वालिफिकेशन हासिल करना पड़ता है। से फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स जो हैं वो एमबीबीएस करने के बाद कुछ सालों की ट्रेनिंग लेते हैं, राइट। सेम वे चार्टर्ड अकाउंटेंट, राइट, दे आर टेकिंग इंटर्नशिप, वो आर्टिकलशिप करते हैं, राइट। तो ये चीजें जो है प्रोफेशन में उसके पास फीस आती है। और सेम वे एम्प्लॉयमेंट, कोई जॉब हो उसमें सैलरी आती है, राइट। सैलरी में भी दो टाइप, उसमें भी एम्प्लॉयमेंट में भी दो प्रकार आते हैं, सैलरी एंड वेजेस, राइट। सैलरी इज फॉर द अपर स्टाफ मेंबर्स, राइट, मतलब कि वेज जो होता है वो डेली बेस पे होता है, सैलरी होती है जनरली मंथली बेस पे होती है। वेज किसको मिलता है? जो मजदूर वर्ग होता है उसको वेजेस मिलता है, डेली वेजेस मिलता है। सैलरी किसको मिलती है? जो रेगुलर वर्क में, ऑफिशियल वर्क में होते हैं,
राइट। तो ये मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट समझाया, इसमें भी अभी आगे बहुत चीजें हैं उसको डिफरेंस करने के लिए, पर ये बेसिक चीज जो है वो मैंने आपको बताई है ताकि इसको समझने में आसानी हो, और इन फ्यूचर भी आपको ये टर्म्स आएंगे आगे जाके, तो तब वो आपके लिए और आसान हो जाए समझना, राइट। सो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, उसका हम एग्जांपल देख रहे थे, राइट। से फॉर एग्जांपल if I am giving goods or goods to someone else is in free, right, without any monetary benefit, right। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि if I am a shopkeeper and I am giving goods or services to the beggar, right, उसको मैं beggar को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, इट्स नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सेम वे मदर्स लव टुवर्ड्स द चाइल्ड, राइट, तो वो भी क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, राइट। सर्विसेज का अगर मैं आपको फ्री ऑफ लेक्चर्स दे रहा हूं, उसके लिए मैं किसी के पास से चार्ज नहीं ले रहा हूं, सो इट्स नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, राइट। तो ये जो चीजें हैं इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक, आपके मदर आपको लव करते हैं, राइट, आपके लिए खाना बनाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, उसके बदले में आपसे पैसा मांगते हैं नहीं, राइट। तो ये चीज जो है वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, राइट। तो जो चीज पैसा कमाने के, पैसा या अदर फॉर्म के कुछ रिवॉर्ड लेने के लिए जो चीज की गई हो, राइट, इट्स कॉल्ड एज अ economic activity, right, with the intention to get something reward in monetary or non-monetary benefits, right। And second thing is non-economic activity, the things which are being done with not intention to earn anything or to get any reward from anyone, right, it's called non-economic activities। So it's a very basic difference and it's a very easy to understand, राइट। सो इकोनॉमिक एक्टिविटी या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी एक छोटा सा पार्ट था आपके फर्स्ट चैप्टर में, राइट। सो स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे, बट वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू दैट जब भी हम मिलेंगे वर्चुअली, जब भी हम मिलेंगे, जब भी हमारी मीटिंग होगी, राइट, तब एक और चीज मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, that how you are comfortable with this subject, right, कि आप लोग जो है वो ये सब्जेक्ट के साथ कैसे कंफर्टेबल है, मतलब कि कैसे, मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा कि कैसे प्रिपरेशंस करना है, आपको एक बुक भी बनानी है, राइट, बट कंफर्टेबल आई वांट टू से दैट डे टू डे रीडिंग में आप कैसे एडजस्ट कर पाओगे इसे, राइट। मे बी आपके पास बुक है और नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आई विल मेक श्योर कि आपके पास कुछ ना कुछ मटेरियल पहुंचे, राइट, जैसे कि सो दैट यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशंस, राइट। ये प्रिपरेशंस जो मैंने आपको बताई है रीडिंग एंड राइटिंग के लिए बताया है, राइट। रीडिंग एंड राइटिंग कंपलसरी है जैसा कि मैंने कहा है, बिकॉज समटाइम्स इट्स हैपनिंग लाइक दैट कि आप से फॉर एग्जांपल गुजराती मीडियम से हैं, राइट, जो भी मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली, राइट, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, बट द प्रॉब्लम अकर्स व्हेन यू आर इन द एग्जाम टेबल, राइट। जब भी आप पेन और पेपर के साथ होंगे, आपका माइंड में बहुत कुछ होगा, लेकिन उसको कैसे पेपर में लिखे वो आपके पास नहीं होगा, राइट। सो बहुत लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस रिक्वायर्स फॉर दैट, बहुत सारी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उसके लिए, फॉर द राइटिंग, राइट, फॉर द रीडिंग, राइट। इसीलिए जो मैं कम्युनिकेशन रखना चाहता हूं दैट मस्ट बी इन इंग्लिश और हिंदी, आइदर इन इंग्लिश और इन हिंदी, राइट। 80% शुड बी इन इंग्लिश, 20% शुड बी इन हिंदी, राइट। जनरली हम गुजराती में तो बात कर सकते हैं, मैं भी बात कर सकता हूं, राइट, बट द कम्युनिकेशन रिक्वायर्स सम सेंसिबिलिटी, राइट, कि उसके लिए कुछ नॉर्म्स होने चाहिए, राइट। नाउ यू आर इन अ कॉलेज, नाउ यू आर नॉट इन अ स्कूलिंग डेज, राइट। मैं आपको जो तैयार करना चाहता हूं वो
फर्दर लाइफ के लिए आपको प्रिपेयर करना चाहता हूँ, राइट। तो ताकि आपको आगे जाके और कहीं भी जगह पे कोई दिक्कत ना आए इस वजह से, राइट। सिर्फ इंग्लिश मैं भी समझता हूँ दैट लैंग्वेज इज नॉट अ पैरामीटर टू गेट नॉलेज, राइट। लैंग्वेज शुड नॉट बी द पैरामीटर्स ऑफ एनी नॉलेज क्राइटेरिया, बट इंग्लिश लैंग्वेज जो है इट शुड बी देयर, राइट, बिकॉज मेजॉरिटी कॉर्पोरेट फील्ड में यही यूज होता है, राइट। इंग्लिश एज वेल एज कंप्यूटर, प्लीज concentrate in both of these subjects also, right। so जब भी मैं यहाँ से आपको लेक्चर डिलीवर करता हूँ, राइट, आपको समझना होगा थोड़ा मोर अटेंशन आपका रिक्वायर है यहाँ पे, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ये जैसे कि मैंने पहले लेक्चर में भी कहा था, दूसरे में भी कहा था कि टर्मिनोलॉजीज यहाँ पे अलग अलग बहुत सारी आएगी, राइट। जैसे कि डिमांड है, राइट, सप्लाई है। अब ये चीज आप सब में भी 12th और 11th में पढ़े भी होंगे, नहीं भी पढ़े होंगे। अगर पढ़े होंगे तो इट्स इन गुजराती, राइट। जो आप पढ़े होंगे वो गुजराती में पढ़े होंगे। अब यहाँ पे जो पढ़ना है, यहाँ पे जो सीखना है, इट शुड बी इंग्लिश, राइट। वो सब कुछ इंग्लिश में ही आएगा। सो प्लीज बी अटेंटिव whenever I am delivering lecture, and please be attentive when you are showing my videos, right, because ये जो चीजें हैं मैं बार बार रिपीट करता हूँ, आपको मैं हर बार यही कहूँगा ही कि प्लीज जो भी यहाँ से लेक्चर डिलीवर हो उसका रीडिंग और राइटिंग दोनों होना ही चाहिए, राइट। तो जब भी हम मिलेंगे वर्चुअली तब मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या राइटिंग पोर्शन में लेना है, राइट। पूरी आपको बुक लिखनी नहीं है, राइट, पर बहुत कुछ ऐसा पार्ट होगा जो मैं आपको बताऊंगा, राइट। तो ये सब चीजें आपको पूरी तरीके से फॉलो करनी है, जो भी चीजें मैं यहाँ से आपको बताऊंगा, राइट। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे एंड स्टे सेफ। थैंक यू।